Good morning students, welcome back to my new video. In today's video, we will start a new chapter from your English grammar book, that is chapter number 9, Models. All of you please take out your grammar book and open page number 47. Here it is written, models are auxiliary verbs that do not have all the three forms. They are used along with the main verbs and add a different meaning to them. It means models are auxiliary verbs. Auxiliary verbs means they are helping, or you can say they are supporting verb. And they do not have three forms. It means in models you do not add ing or you do not add to. Means models में three forms नहीं होते हैं and मॉडल्स में हम ing भी नहीं ऐड करते हैं और ना ही हम टू ऐड करते हैं. दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब्स. मॉडल्स हम मेन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं सो दैट वो एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आए. इट मीन्स मॉडल do not have all the tenses and we use model to complete the tenses. Okay, we use modal verbs to denote that someone is able to do something. means कोई कुछ कर सके, जिसका मतलब है जैसे अगर मैं बोलूँ you can swim और if I say you can paint, it means ये आपकी एबिलिटी बता रहा है कि आप तैर भी सकते हैं एंड आप प्ले भी कर सकते हैं. सो ये आपकी एक एबिलिटी है. दैट समवन इज़ एबल टू डू समथिंग मीन्स कोई कुछ कर सकता है. एंड यहाँ कैन क्या है, हमारा एक मॉडल है. यू कैन स्विम. सो कैन क्या है, एक मॉडल है, एक एबिलिटी बता रहा है. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, दैट समवन इज़ अलाउड टू डू समथिंग. कोई अलाउड है कि वो कुछ कर सके. If I say you could park your scooty here, so I am giving you a permission that आप अपनी स्कूटी यहाँ पार्क कर सकते हैं. It means that someone is allowed to do something. That now see the third point, that someone has to do something. In this, कोई कुछ कर सकता है. If I say like this, we shall play a match. means I am telling someone that we shall play a match. हम ये कर सकते हैं. Now see the next sentence given here. The modal verbs include can, could, would, should, ought to, will, shall, may, might, must, dare, used to, have to and need. हाउ डू वी यूज़ मॉडल्स. आप मॉडल्स कैसे यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल गिवन हियर. मैरी कुड प्ले द पियानो. इट मीन्स मैरी पियानो प्ले कर सकती है. हियर सब्जेक्ट इज़ योर मैरी बिकॉज आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैरी के बारे में. सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. मॉडल यहाँ हमारा कुड है एंड प्ले हमारा वर्ब है. वर्ब क्या होता है, हमारा डूइंग वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन एंड स्टेट के बारे में बताते हैं. सो यहाँ हमारा सब्जेक्ट मैरी है, मॉडल कुड, वर्ब प्ले. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि मॉडल्स हमारा वर्ब नहीं होता है. मॉडल जस्ट हमारा एक हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग वर्ब है जो कि हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. बिकॉज यहाँ हमारा वर्ब क्या है, प्ले. प्ले के पहले हम क्या यूज़ करें, कुड. सो कुड हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब के साथ, सो दैट जो हमारा सेंटेंस वो फुल्ली कंप्लीट हो. आई होप नाउ इट इज़ अंडरस्टूड. द एग्जाम्पल्स विच आई एम गिविंग यू हियर यू हैव टू राइट इन योर फेयर ग्रामर कॉपी. Modal verbs are used to express capability, possibility, necessity and obligation. It means modal verbs हम use करते हैं express करने के लिए capability. Capability means क्षमता. Possibility means
ऐसा हो सकता है, नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत, एंड ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य और यू कैन से ड्यूटी. So the modal verbs given here are can, could, will and would, shall and should, ought to, must, may and might, dare, used to, have to, had to, must not and dare not. So these all modal verbs are given in your book, which we will study in this chapter. Today we will take few modal verbs from here and rest we will do in our upcoming videos. So here are uses and modal verbs. Ability. So you use words like can, could. Possibility can, could, may, might, would. Advice should, ought to. Permission can, may. Request can, could, may, might, will, would. Obligation shall, should, must, ought to. Suggestion could, might, shall, should. Intention will, shall. It means अगर फर्स्ट पॉइंट एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स हमारी योग्यता अगर बताना है देन हम क्या मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे, कैन या कुड. पॉसिबिलिटी मीन्स ऐसा हो सकता है. एडवाइस, अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं देन हम वर्ड्स यूज़ करते हैं शुड और ओथ टू मीन्स चाहिए. परमिशन, परमिशन अगर किसी से कुछ लेना है देन हम परमिशन में कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, कैन एंड मे. रिक्वेस्ट मीन्स अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है देन हम क्या वर्ब्स यूज़ करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड. ऑब्लिगेशन मीन्स बताना है कि आपकी ये ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, देन क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे, शैल, शुड, मस्ट, ओथ टू. जैसे मैं बोलूँ यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, you should obey your teachers. So I am telling you your duty, your कर्तव्य. okay. Now suggestion, अगर हम किसी को सजेशन देते हैं then क्या मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे, could, might, shall, should. Intention will, shall. So now let's begin with can and could. How to use can and could models. So the picture which is displaying on your screen is given in your book also, page number 47. So all of you please listen carefully and underline all the important points, and you have to also write in your fair grammar copy, write model can and could and write 2 examples of it. Now let's begin. We use can and could to tell that someone is able to do something. Can and could हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को बताना चाहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं. मीन्स एबिलिटी कि आप ये कर सकते हैं. एग्जाम्पल, रानी कैन ड्रॉ रियली गुड पिक्चर. मीन्स रानी एक अच्छा पिक्चर ड्रॉ कर सकती है. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड. मैं दौड़ा जितना फास्ट मैं दौड़ सकता था. सो हियर एक एबिलिटी को बताया जा रहा है. कैन एंड कुड आर ऑल्सो यूज टू टेल दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग. एंड कैन एंड कुड हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं किसी को कुछ अलाउ करना कि आप ये काम कर सकते हैं. एग्जाम्पल, You can come to my house for tea. आप मेरे घर आ सकते हो चाय के लिए. Mother said I could have sweets after my dinner. माँ ने कहा कि आप डिनर के बाद स्वीट्स ले सकते हो. सो यहाँ someone मीन्स कोई आपको अलाउ कर रहा है कि आप कर सकते हो. Can and could are also used for asking information or help, offering something and suggesting something. Means can and could हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें या किसी से कोई हेल्प लेना चाहें, या हम किसी को जब कुछ ऑफ़र करते हैं या हम किसी से कुछ सजेशन मांगते हैं, कोई एडवाइस मांगते हैं, देन तब भी हम कैन एंड कुड यूज़ करते हैं.
जैसे अगर इंफॉर्मेशन आपको लेनी है सो आप पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस एंड दैट, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे हो या कोई हेल्प लेनी हो, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर आप किसी को कुछ ऑफ़र करना है, प्लीज़ टेक दिस, सो कैन यू प्लीज़ टेक दिस, सो यू कैन यूज़ कैन एंड कुड for asking information also, for help also, for offering something and suggesting something. Examples are, can you tell me if this bus goes to Vasant Vihar? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बस वसंत विहार जाएगी? We can go to the park instant. I could lend my books to you. Now here are few more examples of can and could. Ability, I can speak 4 languages, means आपकी ये योग्यता को बता रहा है कि आप 4 languages बोल सकते हैं. Ability, see here, ability, the sentence here in can is in present tense, so you will use can, and when the sentence is in past tense in the case of ability, so you will use could. He could play football when he was kid. Possibility, alcohol can cause cancer. Possibility, a lot of crime could be prevented. Permission, can I use your book please? Permission, could I take your book please? Request, can you make me coffee? Request, could you lend me this book? Offer, can I help you? Suggestion, I could help you with English. Cannot, you cannot smoke here. Conditional of can, if you called me, I could find you some suggestions. So now students, moving to will and would. So how you use will and would model? When we ask someone to do something, we use will and would. जब हम किसी से कुछ चाहते हैं कि वो ये करें, then हम क्या word use करते हैं? will and would. Would is the simple past tense of will. Means will का simple past tense क्या है? would. For example, will you please stop making that noise? क्या आप प्लीज़ ये नॉइज़ बंद कर सकते हैं? Will you close the door? क्या आप डोर क्लोज कर सकते हैं? Would you pass me that book please? क्या आप वो बुक मुझे पास कर सकते हैं? We also use will and would to offer or suggest something. Will and would हम यूज़ तब भी करते हैं जब हम किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं या सजेस्ट समथिंग या किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक अनदर कॉफ़ी? वुड आई कैरी द बैग फॉर यू? वुड यू पास मी दैट बुक प्लीज़? Which flavor would you like? So here are few more example of will and would in case of request, and when the request is in informal way, then you will write like this: will you lend me your book? Request is in polite way, then you will use like this: would you study with me? Refusal, present and future negative form: I won't do your work. Refusal is in past tense, then you will use like this: she would not help me yesterday. Offer, present and future: I will watch your children today. Offer is in past, then I would have helped you. Conditional, first conditional: if he asks me, I will help him.
second conditional. If I had more money, I would buy a car. Third conditional. If I had studied, I would have passed. मीन्स यहाँ कंडीशंस एक सिचुएशन बताई जा रही है. We will visit Spain next month. Future in the past. He said that he would help us move next week. Now here is shall and should. So how you use shall and should? Shall and should are used to ask for advice, offer something, suggest something. Means shall and should हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई एडवाइस पूछते हैं या किसी को ऑफ़र करते हैं या कुछ सजेस्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई हेल्प यू विथ दैट हैवी बैग. क्या मैं आपको हेल्प करूं आपके हैवी बैग का. यू शुड ट्राई दैट न्यू मुगलाई रेस्टोरेंट. आपको ट्राई करना चाहिए नया मुगलाई रेस्टोरेंट में. शैल ऑल्सो expresses simple future. For example, we shall go for a picnic tomorrow. Means हमें कल पिकनिक जाना चाहिए. Shall also express command, threat, promise, determination and certainty when used in second and third person. Means अगर सेंटेंस में सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है एंड सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है किसी कमांड को, देन किसी थ्रेड या किसी प्रॉमिस या किसी डिटर्मिनेशन या किसी सिचुएशन के बारे में जो सर्टेन नहीं है, देन हम शैल यूज़ करेंगे. शैल मीन्स ऐसा हो सकता है. ओके, सो एग्जाम्पल्स आर द स्कूल शैल रिमेन ओपन टुमारो. मीन्स ऐसा हो सकता है कि कल स्कूल खुला रहे. संजय shall be expelled from class if he makes a noise again. Means ऐसा हो सकता है कि संजय को हम स्कूल से एक्सपेल कर दे, क्लास से एक्सपेल्ड कर दे अगर वो नॉइस और करेगा तो. सो हियर शैल आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है. शैल वर्सेस शुड. शैल हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को ऑफ़र और सजेशन देते हैं. शुड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या फिर कोई अनसर्टन प्रेडिक्शन करते हैं. मीन्स ऐसा हो सकता है. मीन्स आप श्योर नहीं हैं उस प्रेडिक्शन के बारे में. मीन्स एक अनसर्टेनिटी की है कि ऐसा हो सकता है. नाउ ओथ टू. ओथ टू मीन्स चाहिए. The modal verb ought to is used to make a strong suggestion and it talks about someone's duty. It means modal verb ought to हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को strong suggestion देते हैं. मीन्स बहुत अच्छा एक किसी को बहुत मीनिंगफुल सजेशन देते हैं एंड हम किसी को बताते हैं किसी की ड्यूटी के बारे में, देन हम ought to यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द टीचर्स ought to make the class more interesting. मीन्स टीचर को चाहिए कि वो क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाएं. You ought to know how to spell your name. आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना नाम कैसे बोलना है. मीन्स ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपको चाहिए ये चीज़ करना. Ought to use. We can use ought to instead of should to give an advice or an opinion. Formation ought to, ought not to plus simple verb. Example, you ought to study harder. Means आपको चाहिए कि और आप हार्ड पढ़ाई करें और हार्ड स्टडी करें. You ought not to talk so much. आपको चाहिए कि आप ज़्यादा बात
ना करें। मीन्स अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है देन आप नॉट यूज़ करेंगे ओथ के साथ, बट अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है देन आप ओथ टू यूज़ करते हैं प्लस सिंपल वर्ब के साथ। नाउ कमिंग टू मस्ट। मस्ट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस compulsions, determination, duty and strong belief. For example, I must post a letter today. मुझे चाहिए कि मैं ये लेटर आज ही पोस्ट करूँ। मीन्स आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड ड्यूटी इन एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मीन्स बहुत अच्छी वाली बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स देन हम मस्ट यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विथ फायर। मीन्स चिल्ड्रन को नहीं चाहिए कि वो आग के साथ खेलें। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड ओबे करना चाहिए। वी मस्ट बी लायर्स। मस्ट कीप्स द सेम फॉर्म इन द पास्ट टेंस। सो इन द पास्ट टेंस ऑल्सो मस्ट विल बी सेम। अगर आप पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हो या फिर फ्यूचर टेंस के बारे में या फिर प्रेजेंट टेंस के बारे में, सो मस्ट आपका सेम रहता है। ओके, कोई भी टेंस हो मस्ट आपका चेंज नहीं होता। जैसे विल वुड में चेंज हो जाता है जब वो पास्ट में होता है, बट मस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। मस्ट सेम रहता है पास्ट टेंस में भी। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट इज mustn't. Here are uses of must. Express personal obligation, expresses what the speaker thinks is necessary. Express subjective obligation. Example, you must work hard. All passengers must wear seat belts. Means आपको हार्ड वर्क करना चाहिए एंड पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को यहाँ रिफ्लेक्ट करता है मस्ट। नाउ हियर इज यूजेस ऑफ मे एंड माइट मॉडल्स। वी यूज मे टू आस्क इफ वी आर अलाउड टू डू समथिंग एंड टू टेल समवन दैट दे आर अलाउड टू डू समथिंग। मीन्स मे हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं। एंड मे एंड माइट हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी को बताते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई गो आउट टू प्ले नाउ। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ खेलने। मे आई बोरो योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। Might is the past tense of may. May and might are used to talk about things that are possible or likely. Take an umbrella. It might rain. आप एक अम्ब्रेला ले लो, ऐसा हो सकता है कि बारिश हो। We might go to party later. So now students, today we have done models can, could, will and would, shall, should, ought to, must and may and might. So all the models you have to write in your fair grammar copy with 2 examples. Thank you class. Be safe and stay at your home.